Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Why it is large unit? Yes, sir. Why it is large unit? So, sir, SI unit of mass is gram, but gram in real life can be considered a very small unit, so we consider kilograms. No, 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 no. SI unit of mass is gram. Are you sure? No, sir. Kilogram. It is kilogram. It is not gram. And love was not present in last lecture, so I told specifically that this is the only unit which has this what you can say, the prefix as kilo. Otherwise बाकी यूनिट देखो आप, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, there is no kilo. Okay, amount of substance mole, it is not kilomole. Kilomole is not a standard unit. Mole is a standard unit. Kelvin or electric current, ampere. So these are the simple units which has the for example, what you can say is the 10 to the power is 0, that is 1. Okay, so 1 second or 1 say in length meter, or in Kelvin it is Kelvin. Okay, it is not kilo, but only for the mass the unit is kilogram. Okay, got it? Yes, Yes, sir. sir. This is the Sir. SI unit. This is the SI unit. Okay. Now the derived unit are the Newton and Pascal or something else. What are the other units are there? All these are derived units. Okay. So that will depend on these fundamental units. The derived units can be converted always in SI system or the fundamental units. Okay. Now then we have the multipliers. What are multipliers? For example, if you want to measure say gold, okay, so do you go to a gold shop and say क्या किलो है भाई आज, बोलते हो क्या? Yes, sir. Sir. नहीं। No, sir. No, sir. No, sir. और अगर आप सब्जी बाजार में जाते हैं तो ये पूछते हैं कि आज प्याज क्या ग्राम है? No, sir. No, sir. You No, sir. always yes, Asta, you want to say something? No, sir. Okay. So it depends on how you use it, the units, how you use it. Okay. So it will be required that if the quantity is very small, then we'll have to use some negative multipliers, 10 to the power minus something. And if the quantity is large, then for example, if somebody asks you कि ये बताओ कि ये एरोप्लेन का वेट कितना होता है, so will you tell in kilogram? No, sir. No, sir. Normally we talk about say ton, Yes, sir. Yes, right? sir. Yes, sir. अगर टाइम की बात करें तो if you talk about suppose कि uh, what is the time that Earth takes to uh, revolve around itself, तो आप सेकंड में बताएंगे क्या? No, sir. Days. No, sir. No, sir. Days में. Days or hours or different units depending upon the what application you are talking about. So therefore these multipliers are very important. And what are these multipliers? We start with say positive first. So 10 to the power 0, that is equal to 1. So this is the standard unit, and it will be something like meter or second or say Kelvin, not Kelvin actually, meter second, and not in second also. Okay, meter, and we'll just take only few of them, ampere. Okay, and then what else? Mole in some cases, and then gram. Okay, why I have written gram here? Because this is the now 10 to the power 0, and that is 1. Okay, and now we go to the 10 to the power 1, and then 10 to the power 2, and then to 10 to the power 3.
You know this 10 to the power 3. इसको क्या बोलते हैं? 10 to the power 3. किलो. It is kilo. Kilo. It is kilo. ठीक है? And then 10 to the power 6 and 10 to the power 9 and 10 to the power 12 and 10 to the power 15. So what this 10 to the power 6 says? Mega. Yes, it is mega. ठीक है? Now remember that I have written this kilo as k small, whereas in mega m is capital. सही है गलत है? गलती से मैंने किलो का के स्मॉल कर दिया क्या? You can search. Okay, I will not teach everything. You will have to search. Now what is 10 to the power 9? Giga. Giga. And then 10 to the power 12? Zeta. Tera. Tera. 10 to the power 15? Peta. Peta. It is not penta. Okay, it is peta. Similarly, now this is the what unit is increasing. Okay, size of the unit is increasing. Similarly, if the object is very small, then we can go for say 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 6, then 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 12 and 10 to the power minus 15. Now what is this? 10 to the power minus 10? नहीं पता. ठीक है. 10 to the power minus 10. Huh? 10 to the power minus 10 angstrom. No, 10 to the power minus 1. Sorry, Oh, not minus 10. 1. 10 to the power minus 1. डिकाई. आप सर्च कर सकते हैं इसको. आपको ये लिखना है पूरा. अपने कॉपी में लिखना है. डिकाई. डेका. नहीं, डेका तो 10 to the power minus 1 नहीं होता. ठीक है. 10 to the power minus डेसी 2. होता है. 10 to the power minus 1 डेसी होता है. Yeah, it is डेसी. ठीक है. और वही से हम डेसिमल वगैरह ये सब वही से आया है. ठीक है. डेसी इज 10 to the power minus 1, दैट इज 0.1. सो अगर हमने 1 मीटर के 10 टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा हो गया 1 डेसीमीटर. ठीक है. 10 to the power minus 2, सेंटी. it is centi. It is not SEN, it is CEN. ठीक है. वो सेंटी अलग होता है. 10 to the power minus 3, मिली. Milli. 10 to the power minus 6, माइक्रो. micro. 10 to the power minus 9, नैनो. Nano. ये दिख रहा है ना आपको? Yes, बहुत sir. छोटा हो रहा है. छोटा नहीं है नहीं सर. बड़ा करना है, बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ये देखो. ठीक है. यस सर. 10 to the power minus 12 इकोमीटर. इको. और 10 to the power minus 15 फेम्टो. femto. In general, it is also if it is for example length, then it is in Fermi also, Fermi meter or something. Fermi. ठीक है. But normally we use this femto, not Fermi. ठीक है. Fermi बहुत ही specific nuclear physics में use किया जाता है. Otherwise femto is the common. So for example, second. So if we are talking about the very quick reactions at the atomic level, then we will talk about the femtosecond or picosecond mostly. Nanosecond will be the common thing in atomic level where the electron will stay for some time in the excited state. We'll see later on. इसके example हम बाद में देखेंगे. ठीक है. Microsecond you already know, and millisecond is commonly used when you talk about the general life examples. For example, if you talk about the marathon, okay. So in marathon also you use the millisecond sometimes. ठीक है. Now coming back to this, the bigger side, kilo is very common. We know kilogram. तो आलू प्याज खरीदना है तो किलोग्राम यूज करते हैं. मेगा कहाँ पे यूज किया जाता है? सर जहाँ पे इलेक्ट्रिक टर्म्स आते हैं, मेगावाट. Yes, electric power is normally it is in megawatt, and also
If you talk about very large scale production, then it is gigawatt. Okay. Giga is very common. Storage term, gigabyte. yes, gigabyte and gigahertz. तो आपका जो Gigahertz. मोबाइल है, तो मोबाइल का जो क्या कहते हैं उसे, प्रोसेसर. So the processor is working in gigahertz. Okay. तो आप बोलते हैं ना कि this is something like dual core and say 4.2 gigahertz. ऐसे कुछ है. So that is what we use the this term gigahertz. Okay. Also, megahertz is also used. Megahertz कहाँ पे use होता है? Any idea? आपके घर पे कहाँ पे यूज होता है मेगाहर्ट्ज? रेडियो में. यस, वेरी गुड, रेडियो. सो वेयर इन रेडियो? रेडियो. रेडियो में कहा कौन सा स्टेशन कितने मेगाहर्ट्ज पे होता है? एनी आइडिया? सर रेडियो 98.3, 95 सब कोई भी वेरी गुड. स्टेशन होती है. रेडियो मिर्ची वगैरह जो है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सब मेगाहर्ट्ज में है. हाँ सर. तो 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है. नागपुर स्टेशन 500 एंड समथिंग 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है. इस टाइप से ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं. Which is not audible to human ear. Yeah, you are talented people, quite good. किलोहर्ट्ज कहाँ पे यूज होता है? तो ठीक है, किलोहर्ट्ज हम बाद में देखेंगे. इट्स क्वाइट स्पेसिफिक. ओके. नाउ टेरा. टेरा कहाँ पे यूज होता है? सर स्टोरेज टर्म में यूज होता है सर. टेराबाइट हो गया. वेरी गुड. हार्ड डिस्क जो होते हैं 1 TB के आ गई. अब आजकल तो 2 TB भी मिलती है, बट 1 TB इज नाउ वेरी कॉमन. यस सर. ठीक है. एंड पेटा? तो पेटा का सुना नहीं सर. नहीं सुना. जब आप क्लाउड स्टोरेज की बात करेंगे ना, देन यू विल टॉक अबाउट द पेटा and also 10 to the power 16 exa and so forth. Okay, so these are the numbers that you should remember. अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आपको एक फर्स्ट यूनिट मिल जाएगा यूनिवर्सिटी फिजिक्स का, तो वो आप उसमें से ले सकते हैं. ठीक है. Now suppose somebody want to know how many say megahertz are there. So 10 to the power 6 megahertz. Sorry, 10 to the power 6 megahertz नहीं. 10 to the power 6 means megahertz. Okay, so 10 to the power 6 hertz is megahertz, 1 megahertz. Okay, so suppose I want to know what is the value of 1 hertz in megahertz. So what should I write? 10 to the power minus 6. ठीक है, ये हम इधर लेके गए, so this becomes now 10 to the power minus 6. ठीक. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No sir. अगर डाउट है तो फटाक से अभी हैंड रेज करो. ठीक है. बिकॉज आई वांट यू टू बी ट्रेनेबल पीपल. कल सर ने बताया था ना, टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेनेबल चाहिए, ट्रेन होना चाहिए. ठीक है. 1 हर्ट्ज इक्वल टू 10 to the power minus 6 मेगाहर्ट्ज. तो ऐसे लिखो आप, 1 हर्ट्ज इक्वल टू हाउ मेनी किलो हर्ट्ज? 10 to the power 1 minus हर्ट्ज. लिखो Power फटाफट लिखो. minus 3. लिखो. And also again here say 1 meter equal to how many say millimeter, and then micrometer, nanometer, and then picometer and femtometer. अगर इतना आपको आ गया ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. You have taken different examples like 1 hertz on the left hand side and 1 meter on the right hand side. Deliberately we have taken this example.
ठीक है, हो गया सबका? यस सर। यस सर। चलो एक एक करके बताओ। चलो रोल नंबर 1, Yes, 1 sir. hertz equal to 1 hertz equal to 10 to the power minus 3 kilohertz. good. रोल नंबर 2 कितना मेगाहर्ट्ज? रोल नंबर 2 है कि नहीं है? चलो रोल नंबर 3। यस सर। हाँ बताओ कितना मेगाहर्ट्ज होगा? 1 hertz equal to how many megahertz? नहीं समझ में आया तो सीधा बोल दो, नहीं सर समझ में नहीं आया, बताओ फिर से। फिर से बताओ सर। हाँ ऐसे चाहिए भाई। ये देखो यहाँ हमने क्या किया, 10 to the power 6 hertz इज 1 megahertz, या इसको उल्टा भी लिख सकते। फिर से 1 megahertz equal to 10 to the power 6 hertz, right? Now you can Yes, take sir. this on the left hand side or just divide by 10 to the power 6. यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो। No, you people will think कि अरे ये तो बच्चों का खेल है, but this is not बच्चों का खेल. Remember, this is going to be serious when you will increase the numbers and complexity. Okay. So now this is 1 divided by 10 to the power 6. That will be 10 to the power कितना? minus 6. सही है? Megahertz as it is. And this 10 to the power 6 and 10 to the power 6 is cancelled. So this is 1. Sir, 10 to the हाँ power 3 आएगा ना, आपने -3 लिखा है कहाँ पे? किलोहर्ट्ज। ये हाँ नहीं स्लो लिखा है। नहीं ये देखो ना, बराबर है। बराबर है। ठीक है। फिर से सी यू हैव टू गेट सेटिस्फाइड। ठीक है, टाइम लगेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसीलिए यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज इक्वल टू कितना? 10 raised to power 3। ठीक है बराबर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार वी सर वांट द पर ट्रेनेबल आपने जब पीपल। वो लिखा था तब 10 to the power 3 लिखा था ना किलो के लिए। हाँ तो ये लिखा है ना मैंने, राइट साइड में देखो, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, सर ये देखो। हाँ ठीक है, ये वाला। नाउ व्हाट वी डू इज, नाउ वी वांट 1 hertz, so just divide by 10 to the power 3 here. Similarly divide by 10 to the power 3 here. अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? This will be 10 to the power -3 kilohertz. सही है? सही है गलत है? चाहिए। Now this is 10 to the power 3 and 10 to the power 3, so this is 1. ठीक, hertz आ गया ध्यान में? यस सर। अब ये इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आता है जिसमें बहुत सारे यूनिट्स आ गए, तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द यूनिट्स एंड देन फाइंड आउट द फाइनल यूनिट कि ये फाइनल यूनिट क्या आएगा। सो यू शुड नो द मल्टीप्लायर्स। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी वांट टू रेज हैंड? गो अहेड। एनी क्वेश्चन? पक्का? चलो आगे चले फिर। यस सर। Okay. Yes, sir. Coming back to this position, now 1 hertz equal to how many megahertz? Roll number 4. 10 raised to -6 megahertz. Very good. Okay, then how many gigahertz? Roll number 5. है कि नहीं 5? 6. 10 to the power -9. Very good. 10 to the power -9. And how many terahertz? 6. 10 to the power -12. Okay. And how many petahertz? 10 to the 10 power to the power -15. 15. एक ही व्यक्ति बता रहा है क्या? मेरा बाकी लोगों को भी 7, चांस? हाँ रोल नंबर 7 है सर। हाँ, तो बाकी लोगों को भी चांस दो थोड़ा सा। Okay, ठीक sir. है। नाउ
coming back to this. Now 1 millimeter equal to how many millimeter? Sorry, 1 meter equal to how many millimeter? ये कैसे 10 to the- निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पे लग करता हूँ. ठीक है, 1 meter equal to how many millimeter? Okay. Now we know that 1 millimeter equal to how many meter? बताओ, रोल नंबर 8. नहीं है, 9. रोल नंबर 9 है कि नहीं? 10. इसलिए ये चाहिए मुझे एक्चुअली यहाँ पे रोल नंबर्स. 11. 10 raised to the power minus 3. वेरी गुड. ठीक है, 10 to the power minus 3 मीटर. अगेन, अगर आपको नहीं समझ में आता तो बी स्लो, कोई दिक्कत नहीं. स्लो है तो कोई दिक्कत नहीं. जस्ट डिवाइड बाय 10 to the power minus 3 हियर, डिवाइड 10 to the power minus 3 हियर. जो भी होगा यहाँ पे, इसको कैंसिल करना है ना हमें. ठीक है. नाउ 10 to the power minus 3 goes to the numerator. It becomes 10 to the power 3 millimeter equal to 1 meter. ठीक है. Yes, sir. कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा बोर हो सकता है कि अरे ये क्या चल रहा है, ये मतलब हम क्या छोटे बच्चे हैं क्या? बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हम लेंगे इसके बाद एग्जांपल लेंगे. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि सच में आपको समझ में आया कि नहीं आया. ठीक है. नाउ सिमिलरली, okay, now this is 1 meter equal to 10 to the power 3 millimeter. And 1 meter equal to how many micrometer now? Roll number 11, 12, 13 है कोई? Sir, roll number 13. हाँ, बताओ. 10 raised to the power 6. Very good. Okay. Roll number 14, nanometer. 14 है कि नहीं? चलो 15. Sir, 10 raised to the power 9 meter. 9 Nanometer. nanometer. Very good. Very good. And then next roll number 15. 10 to the power 12. Very good. And next roll number 16. 16 है नहीं है. 17, 18, 10 to the power 15. 15. Very correct. Now again I am asking the same question कि आप में से कितने लोगों को समझ में नहीं आया? You can just raise your hand. Okay. Good. I like it. You are asking the queries. Okay. अब आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया. क्या मैं इसको रिपीट करूं? ये बताओ इसमें से कोई भी एक. छोटे से बड़ा करना है, बड़े से छोटा करना है, कौन सा समझ में नहीं आया? सर ये छोटे से बड़ा बड़ा करना वो समझ में नहीं आया. ठीक है. ये मिलीमीटर टू मीटर कैसे किया? यस सर, वही. ठीक है. ठीक है, इसको और एक एग्जांपल ले लेते. आई लाइक इट. आई लाइक द क्वेश्चंस. ओके, थोड़ा सा नया एग्जांपल लेते. सो व्हाट इज दिस से 1 micrometer? What we know about 1 micrometer? It is 10 to the power कितना? -6. -6 मीटर. -6. ठीक है. Now what we want is 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है. उल्टा करना है इसको. तो 1 meter contains how many micrometer? Now what we do is simply we will just do simple thing. यहाँ पे कितना है? 10 to the power -6 मीटर के साथ कितना चाहिए हमें? 1 चाहिए. ठीक है, ये चाहिए ना. So just divide this by the same number. आ गया ध्यान में? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now since we are dividing by 10 to the power -6, here also we have to divide by 10 to the power -6. Clear?
Now this get cancelled out. ये दोनों cancel हो गए, ये और ये. This becomes 1. So the right hand side becomes 1 meter, and the left hand side, this goes to the numerator. 10 to the power minus 6 becomes 10 to the power 6. plus 6 micrometer. ठीक है, आ गया ध्यान में. Sometimes it may not be very obvious. ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. इट्स ओके, इट्स ओके. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. अभी देखेंगे हम, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अब बताओ कि किसको समझ में नहीं आया. एनीबॉडी? कि अभी भी नहीं समझ में आया? यू कैन रेज योर हैंड, देयर इज नो प्रॉब्लम. नहीं हो गया? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. करे प्रैक्टिस थोड़ी सी. Yes, sir. हाँ sir. चलो, now I want to convert say 1 hertz equal to how many say gigahertz. तो आपको आंसर नहीं देना है, आपको स्टेप वाइज बनाना है इसको. पहले जैसे मैंने किया वैसे स्टेप वाइज आप करो. उसके बाद जैसे आंसर आता है तो देन रेज योर हैंड. यू डोंट नीड टू टेल द आंसर. आंसर बताना नहीं है आपको. करो इसको. यश, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. ओके, सार्थक, संकल्प, लव, ऋग्वेद. Good. Yeah, keep your hands raised. Don't lower it right now. अभी मत करो, मैं बताऊंगा उसके बाद आप you can just lower your hand. Okay. और good. Okay. Now, is there, okay, I'll just write someone's answer first. Okay, let me go to Sankalp. Yes, sir. What is your answer? So 10 raised to the power minus 9. 10 to the power minus 9. Okay. Now, if your answer is same, then you can lower your hand. Okay. If you have any different answer, okay, Sudeep, what is your answer? 10 to the power 9, sir. Plus Giga. 9? Plus 9. Okay. So Sudeep has 10 to the power plus 9. Okay. And if this is the answer of these two people, Shubham and Om, then you can lower your hand. Okay. Shubham, what is your answer? Okay. Sudeep, you can lower your hand. Yes, sir. Now I just want to ask कि ये कितने लोगों को नहीं आया? How many of you are not able to do it? Okay, 1. Good, good. नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. 5-6 लोग हैं और है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके. लेट अस ट्राई. ठीक है. नाउ what we know will start from this 1 gigahertz equal to 10 to the power 9 hertz. चलो लिखो, and then divide it by the same number. 10 to the power 9 से इसको डिवाइड करो, 10 to the power 9 से इसको डिवाइड करो. सॉरी, कर दिया?
Now this get cancelled out. And we know 1 divided by 10 to the power 9 is 10 to the power minus 9. minus 9 gigahertz equal to 1 hertz. आ गया? So the answer this is correct. A. ठीक है? B कैसे आया? आपने क्या गलती की? आपने थोड़ी सी जल्दबाजी की. So this has become एक स्टेप आपने मिस कर दिया. So you should not do that. ठीक है? ये होता है. It happens. So don't worry. अब जिन्होंने हैंड रेज किया था उनमें से कितने लोगों को नहीं समझ में आया वो हैंड रेज रखो, बाकी लोअर कर दो. हर्ष, ओके, आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेते हैं. तो नेक्स्ट विल बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको, या सिंपल वाला दे दो पहले. कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड, ओके, ठीक है. नाउ आई वांट टू कन्वर्ट से 3 नैनो सेकंड टू मेगा सेकंड. सेकंड नहीं करते, थोड़ा सा अजीब सा लगता है. नैनो हर्ट्ज टू सम मेगा हर्ट्ज करो, करके देखो जैसे आता है आपका. रेज योर हैंड, डू नॉट टेल मी द आंसर, आई विल जस्ट आस्क यू रैंडमली. Because this practice is very much needed. चलो, फर्स्ट हैंड इज रेज तुषार एंड देन सार्थक, संकल्प. ओके, गुड. सुदीप, एस वाले ज्यादा दिख रहे हैं. ठीक है, गुड गुड गुड. ओके, लेट मी गिव चांस टू वन ऑफ द एस नंबर, एस नेम. शुभम, शुभम ने हाथ नीचे कर दिया क्या? ओके, लेट मी गो टू वैष्णवी. वैष्णवी, व्हाट इज योर आंसर? वैष्णवी, हाँ, प्लीज रिपीट. 10 to the power 9. 10 to the power 9, but 3 is there or 3 is not there? 3 है ना यहाँ पे, so this should be 3 into 10 to the power 9. 30 to the power 9. Sorry, can you just type? I am not able to hear you properly. 30 चाहिए, 30 into 10 to the power 9. Okay, let me go to Rigved. Rigved, what is your answer? Are you there? 10 to the power of I think 15. Okay, 15. So it is 3 into 10 to the power 15 or only 15? 10 to the power 15. 10 to the power 15. Only. Okay. No 3? 3 into 10 to the power 15. Okay. 3 into 10 to the power 15. Okay. 3 into 10 to the power 15. Okay. Now let me ask if any one of you have the answer A or B.
you can lower your hand. अगर आप में से A या B आंसर आया है किसी का, तो you can just lower your hand. Okay. Neither. What is your answer? Yes, sir. What is your 3 answer? into 10 raised to the power minus 3. Okay. Sir, Three. I think 3 into 10 is to power minus 15. Not Yes, sir. plus. Minus 15. 3 Rugved, into you 10 want raised to to power. change? Yes, minus 15, sir. Yes, yes. Okay. Yes, okay. sir. 3 ठीक. into 10 raised to power minus 15. Okay. Okay. अब Sir, जिनका 3 into 10 A, to the B, power C में से किसी का कोई आंसर आया हो, तो then you can just lower your hand. इसके अलावा कोई आंसर है, तो then you can keep your hand as it is. Okay, Ankush, what is your answer? 3 into 10 raised to 15 megahertz. Plus 15. हाँ. Okay, so let me write this answer. Plus 15. Okay. चलो, अगर ये 4 आंसर है तो you can just lower your hand. 4 में से कोई है तो. Okay, Yash you have something different answer? No, Yash has lower. No, sir. Tushar, No, sir. Yes, sir. what is your answer? 3 into 10 to the power minus 9. Minus 9. Okay. Let me write answer E. 3 into 10 to the power minus 9. Okay. Any other answer other than this? देखो, अभी मैं 5 मिनट पहले बता रहा था आपको कि this looks very simple, but this may not be simple as it looks. Okay. Okay. Let us start from the left hand side. अभी मैं बताऊंगा, आपको करते जाना है वैसे वैसे. ठीक है? Yes, you want to say something? Sir, Yeah. 3 into 10 to the power plus 12. Plus 12. Okay. One more answer. देखो, एक ही प्रॉब्लम की कितने आंसर आ गए. 3 into 10 to the power plus 12. Okay. Okay. अब उन लोगों को हैंड रेज करना है कि जिनको समझ में नहीं आया कि कैसे करना, कि हमें समझ में नहीं आया ये क्या, मतलब क्या, कैसे करेंगे इसको, कैसे स्टार्ट करेंगे. ठीक है. जिन्होंने ऑलरेडी आंसर दिया है उन्होंने हैंड रेज नहीं करना है, वो भी रेज करेंगे नहीं तो. ठीक. ओके. Let us start with the left hand side. What is the left hand side? It is nano, right? So let us start with nano first. ठीक है. जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको वैसे रखना है, उनको वैसे रखना है. Okay. So 3 nanohertz. Now nanohertz means how many hertz? Now we know here. 10 raised to power 10 minus to the power 15. minus 9. Okay. Nanohertz is 1 nanohertz is 10 to the power minus 9 hertz. So I can write 3 nanohertz is equal to 3 into 10 to the power minus 9 hertz. Yes, no? Yes, sir. Right? Yes, sir. Now I take the right hand side. Now this is left hand side हो गया. अब right hand side ले लो. ठीक है. Now right hand side is megahertz. Now how much is megahertz in hertz? 10 to the power कितना hertz हो जाएगा? 10 to the power 6. 6. ठीक है. Now we want this right hand side to be how many megahertz? Okay. And we have the value here as hertz. ठीक है. तो अगर मैं यहां से 1 hertz की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर देता हूं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, राइट में क्या चाहिए, इसके मेगाहर्ट्ज चाहिए लास्ट में. अब मेरे पास हर्ट्ज है तो हर्ट्ज को मैं मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेता हूं
and then I can put the value of hertz here. So what I do is just divide by 10 to the power 6 here and 10 to the power 6 here. So what I can get is, इसके बाद क्या आएगा, this will be 1 hertz and this will be 10 to the power minus 6 megahertz. सही है? -6. सही है? Now we know the value of 1 hertz. ये 1 hertz की वैल्यू आ गई आपके पास, ये in megahertz. So I can replace this 1 hertz by this 10 to the power minus 6 megahertz. So again I will start with the problem as left hand side LHS equal to 3 nanohertz equal to 3 into 10 to the power minus 9 as it is. ठीक है, इसके बाद हर्ट्ज है, तो इसके बाद हर्ट्ज की वैल्यू क्या आई हमारी, क्या आई, ये 1 hertz की वैल्यू आ गई -6 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6. So now this is equal to 3 into 10 to the power minus 9 into 10 to the power minus 6 megahertz, and this is minus 6 and minus 9 कितना आता है, 3 into 10 raised to power minus 15. आ गया? तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने दिया था वो सही है, ऑप्शन सी जिन लोगों ने दिया था इसमें से आपने 9 को +9 कर दिया, ये गड़बड़ी हो गई, इसलिए +9 minus 6 हो गया। ऑप्शन डी जिसने दिया था उन्होंने बहुत जल्दबाजी की और 6 और 9 ठीक है 15 हो गया, ठीक है, बहुत जल्दी में आंसर देने वाले ये लोग हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस एंड दिस, ई और एफ के बारे में आपने क्या सोचा, तो -9 तो आपने ये नैनो देखा ही नहीं इधर डायरेक्ट, हाँ ठीक है, ये आ गया ना, नैनो आ गया 10 to the power minus 9 आ गया, हो गया काम, ऐसे कुछ आपने गड़बड़ कर दिया। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी श्योर एंड यू हैव टू टेक केयर व्हाइल यू कन्वर्ट दिस यूनिट्स, ठीक है, और ये आपको हर जगह आएगा, नॉट ओनली इन फिजिक्स, कंप्लीट इंजीनियरिंग में यही है आपको, ये कन्वर्ट करो वो कन्वर्ट करो, ठीक। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। अब जिन लोगों ने हैंड रेज किए थे कि उनको समझ में ही नहीं आया था, उनमें से किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है या दूसरा भी कोई? इफ यू आर ओके यू कैन नाउ लोअर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। आर्यन समझ में आ गया? वैष्णवी समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो फिर से आप पूछ सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट करिए। वेरी गुड, आई लाइक इट, ये ऐसे होना चाहिए कि नहीं दोबारा बताओ। हम क्या करेंगे, ऑलवेज विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज 3 नैनोहर्ट्ज, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड नाउ कन्वर्ट इट इनटू हर्ट्ज, जो भी होगा मल्टीप्लायर उसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो 3 into 10 to the power minus 9 हर्ट्ज, और अब स्ट्रेटजी हम ऐसे बनाते हैं कि इस हर्ट्ज की वैल्यू जो है वो मेगा हर्ट्ज में हम कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ द राइट हैंड साइड इज मेगा हर्ट्ज, ठीक है, सो मेगा हर्ट्ज राइट में आना चाहिए, तो व्हाट वी डू इज वी नो दैट 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10 to the power 6 हर्ट्ज, ठीक, डिवाइड बाय 10 to the power 6 ऑन बोथ साइड, तो वी गेट 1 हर्ट्ज हियर, यहाँ पे 1 मिल जाएगा आपको, और ये हो जाएगा 10 to the power minus 6 मेगाहर्ट्ज। अब ये 1 हर्ट्ज की जो वैल्यू आपको आई, इसको आप रिप्लेस कर दो मेगाहर्ट्ज से 10 to the power minus 6, तो हमने पुट कर दिया। सो 3 नैनोहर्ट्ज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 9 इंटू, या हर्ट्ज की वैल्यू क्या आई, 10 to the power minus 6 मेगाहर्ट्ज हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो हमने 9 and 6 दैट इज 3 into, फाइनल आंसर आ गया 3 into 10 to the power minus 15 मेगाहर्ट्ज,
ठीक है वैष्णवी, हाँ सर ठीक है। पक्का? हाँ तो अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है चलो सर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मजा आ रहा है? यस सर। यस सर। जो भी यस सर, मजा आ रहा है। दो तीन चार जो भी नंबर होगा वो, ठीक है। नाउ जस्ट कन्वर्ट say 15 into 10 to the power 2 gigahertz to millihertz. करो इसको। Sir, can you repeat, sir? So sorry, sir. Yeah, the screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. बड़ा कर दो इसको थोड़ा सा, आ गया पूरा स्क्रीन। तो स्टेप वाइज करो, डोंट बी इन हरी, जल्दी नहीं करना है आपको, करेक्ट करना है, एक्यूरेट करना है। There is one hand raised. Okay, two, Rugved and Love. Make sure you have not made any mistake. सबको ध्यान रखना है कि ये जॉब सब आप कुछ जो भी कर रहे हैं वो फिजिक्स के बुक में ही करना है आपको। इसके बाद मतलब लेक्चर के बाद आपको ये फोटो निकाल के इसका पीडीएफ बना के अपलोड भी करना है। ये नहीं कि कोई दूसरा कर रहा है और आपने बस बस ऐसे ही हाँ हाँ नहीं नहीं बोल दिया, हो गया काम, ये नहीं चलेगा। ओके, वी हैव 1 2 3 4 5। Okay, let me go to 10, first 10. Take your time, there is no problem. Okay, now we have 10 or more. So let us start one by one. Okay, this time let me take, okay, Krushida, can you tell me what is your answer?
Krishita, are you there? नहीं. Okay, Sarthak. Am I audible? Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. मुझे लगा मैं ही म्यूट हो गया. चलो ओम. Sir, 15 into 10 raised to power minus 10. Okay, Sarthak. Can you repeat it? 15 into 10 raised to power minus 10. 15 into 10 to the power minus 10. Okay. अब ये आंसर जिन लोगों का आया है दे कैन रेज सॉरी दे कैन लोअर देयर हैंड. सेम आंसर आ गया. नहीं. ओके अंकुश. Sir, 12. 12 चाहिए क्या? ओके. Yes. Let me just make it 12. Okay. Oh, sorry. Okay. Any other answer? Sir, 15 into 10 raised to 14 Plus 14, minus 14. plus 14. plus 14. Plus 14. Okay. Let me write it here. Sir, 15 into 10 10 to the power. raised to power 5. Yes, sir. This Okay. is the answer. 15 into 10 to the power 10 to the plus power 5. 5. Yes, sir. 5. No, मैं जानबूझ के प्लस लिख रहा हूँ. power minus 13. Minus 13. Yes, sir. Okay. There is one more answer. 10 to the. Okay. Sir, Any other answer? 15 into 10 to the power 6. Plus 6. Yes. Plus 6. Okay. Or Sir, 15 into 10 to the power 10. 10. Okay. Yes, sir. Sir, 15 into 10 raised to power minus 4. Okay. किसी का 10 आया है plus 10 ना? 15 into 10 raised to power minus 10. Minus 10. Okay. और 4 किसने बताया? 4 प्लस है कि माइनस है? Minus. माइनस 4. ओके. और Sir, plus 10 है. 15 into 10 to the power plus 10. प्लस 10 चाहिए. ओके. Yes, sir. Sir, 15 into 10 raised to power 5 megahertz. 5 ऑलरेडी है. प्लस 5 ना? Yes, sir. Yes, ओके. sir. ऑलरेडी सी आंसर जो है ना ऑलरेडी वही है. और 15 is to 10 to the power minus 15. minus 15. Okay. Let me write it here. Minus 15. Okay. Any other answer? Sir, 15 into 10 to the power 8. 8 plus. Yes, sir. Plus 8. बाप रे बाप. कितने आंसर हो गए? 9 आंसर हो गए. और चलो अब 9 में से अगर आपका आंसर है 9 में कोई भी तो यू कैन रेज योर सॉरी लोअर योर हैंड. If your answer is somewhere in this 9. Ayush, you have different answer? नहीं. Krishita? Krishita is there? I don't know what is her answer. Okay. Now raise the hand if you have not understood this. मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे करना है. जल्दी जल्दी करो. 5 6 7 8 10. ओके. अब जिन्होंने हैंड रेज किया है वो पहली स्टेप बताओ. आप में से कोई भी एक जिन्होंने हैंड रेज किया है ना उसमें से सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी? इसको सॉल्व करते हैं अभी. यहाँ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अरे पहली स्टेप क्या है? LHS से 1 gigahertz equals to how many hertz? इसे Very निकालना। correct. Very correct. We'll start with left hand side. Instead of 1 gigahertz, we'll start with the left hand side. First left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है हमें? 15 into 10 to the power 2
gigahertz. Now we know that. हम ऐसे लिख सकते हैं. We know that. What we know? 1 gigahertz हमें पता है. 1 gigahertz कितना होता है? 10 raised to the power 9. 10 raised to the power minus 9 hertz. 9. 10 to the 10 to the power power minus 9? 9. Plus Plus 9. Plus Plus 9. 9 hertz. नहीं भाई, प्लस माइनस में गड़बड़ मत करो. ये देखो इधर आ गया. ये इधर. This is 1 hertz equal to this. So ये देखो. 10 to the power 9 is giga. Okay. Coming back here. So 1 giga is 10 to the power 9 hertz. अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो. So what we get? LHS equal to, ज़्यादा ही बड़ा हो गया. LHS equal to 15 into 10 to the power 2 as it is. और गीगा हर्ट्ज की वैल्यू जो है वो है 10 to the power 9. So into 10 to the power 9 हर्ट्ज. ठीक है. यहाँ तक हो गया क्या सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. जिसने हैंड रेज किया था उसमें से Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. सर. हाँ किसी, सर. हाँ, किसी को डाउट है Yes, sir. कि ये कैसे निकाला? नो सर. पक्का? नो सर. यस सर. 100%? Nice, sir. ओके. यस सर. अब क्या करेंगे हम? ये हर्ट्ज की जगह हमें क्या चाहिए? राइट हैंड साइड में क्या पूछा गया है? मिली हर्ट्ज. तो obviously what I want is, if I know 1 hertz equal to how many millihertz, ये अगर हमें पता है तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. 10 to the power minus 3. ठीक है. ये गड़बड़ नहीं करना. किसने बताया? नाम बताओ. किसने बताया? सही होगा तो सही, अच्छा लगेगा ना. ठीक है. We start with 1 millihertz. ये हमें पता है. 1 millihertz equal to how many hertz? 10 मिली to the power मतलब minus 3. minus 3. ठीक है. Now what we do? Just divide it by 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3, both sides. ठीक. तो क्या होगा फिर? Ten to the power 3. ये हो जाएगा 10 to the power 3. ठीक है. प्लस वाला. ठीक है. माइनस का प्लस हो गया. मिली हर्ट्ज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए, तो दिस इज 1 हर्ट्ज. यही तो चाहिए था हमें. क्या चाहिए था? 1 हर्ट्ज इक्वल टू हाउ मेनी मिली हर्ट्ज. कितना आया? 10 to the 10 power to the 3. प्लस 3. power. ठीक है. ये आ गया प्लस 3. अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसके आगे की स्टेप क्या होगी? 15 एज इट इज इंटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power 3 प्लस वाला, और यूनिट क्या आएगा? मिली हर्ट्ज. अब इसको कैलकुलेट करो. 15 इंटू 2 प्लस 9 11. 11 प्लस 3 14. 14. So 10 to the power 14. अब बताओ किस किस का आंसर सही था? रेज योर हैंड इफ योर आंसर वाज करेक्ट. बाकी लोग लोअर डाउन कर दो. चलो 12 लोगों का आंसर सही था. गुड. मजा आ रहा है? Yes, sir. तो इसको मजे को और थोड़ा सा बड़ा कर दे. क्या हुआ? हाँ सर. हाँ. चलो. हाँ. तो टुमारो और टुडे इवनिंग यू विल गेट सम टेस्ट to convert one number into the other unit, from one unit to the other unit. ठीक है. Be careful. Now here this is not the correct answer. Whatever I have written, 15 into 10 to the power minus 14. This is not the standard form in which you should write. Standard form क्या है?
क्या होना चाहिए? हर्ट्ज। नहीं नहीं नहीं, 15 into 10 raised to the power 15. 15 कैसे आएगा? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज द वन नंबर with one decimal point and then the remaining number. डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही नंबर चाहिए हमें, 1.5. Now what should I write here? 1.5 अगर इसको into 10 to the power 15. 13 15 को 1.5 into 10 raised to the यहाँ पे power अभी कंफ्यूजन हो रहा है, 15 चाहिए कि 13 चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है। 15। इसको जस्ट फॉरगेट 15 अबाउट चाहिए 10 to सर। power 14. 10 to power 14 के बारे में सोचो ही मत। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर कितना? 1. बराबर है, 1। ठीक है। कितना आएगा कि 10 टू पावर -1 आएगा? 1 आएगा ना, बराबर है। ठीक है, इंटू 10 टू पावर 14 एज इट इज। यस सर। तो आप देखो 1.5 इंटू 10 टू पावर 15 आ गया देन में। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यस सर। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. आपको मॉडल में यही लिखना है, मॉडल में अगर लिखना है, अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो व्हाट यू कैन राइट इज 1.5 E50। इसका फॉर्मेट अलग है, बस बाकी कुछ नहीं। बट आई विल ट्राई नॉट टू गिव यू द क्वेश्चन लाइक दिस। तो मैं सर E plus 15 होगा सर, E minus 15 होगा, E मतलब plus E plus 15। नहीं, E plus 15 E plus 15, सर, डायरेक्ट E15 नहीं लिखेंगे सर। हाँ डायरेक्टली 15 ही लिखेंगे, और अगर माइनस है तो -15 करेंगे। ठीक ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो, वैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, otherwise it will be very simple question, just convert this to this and it will not be a time bound। ठीक है, 1 घंटे में आपको 10 करने हैं, बहुत हो गए, 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे। ठीक है, ओके, रेडी फॉर अ क्विक क्विज? यस सर। Yes, sir. Okay, let's go to Moodle. Let me share the screen of the Moodle, and everybody has to join this quiz. Okay, let me show you here. आ गया Moodle. Okay, I have to share the tab. Okay, go to the course of engineering physics. Sorry, engineering physics lab. इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, ये ऊपर जो दिख रहा है, एंड देन कम डाउन टू मेजरमेंट्स। मेजरमेंट में आपको क्विज ऑन यूनिट्स दिख रहा है। यस सर। बस इस पे क्लिक करना है, रीड द इंस्ट्रक्शन, यू विल गेट ओनली 20 seconds टू आंसर द क्वेश्चन एंड देयर इज ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, एक से ज्यादा नहीं है। ठीक, now I will start the quiz, you can join as a student. Okay, so you can join now. ठीक है, किसी को डाउट आता है तो पूछ लो। सर हाँ, हेलो सर, मूडल पे कहाँ जाना है? इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब। मॉडल पे इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब वाला कोर्स जो है, हाँ सर, गए सर उस पर। हाँ, लैब में जाने के बाद आपको आएगा नीचे क्विज ऑन यूनिट्स। नहीं आया सर, टॉपिक मेजरमेंट्स दिख रहा है? नो सर। मेजरमेंट्स भी नहीं दिख रहा है। इंजीनियरिंग आप फिर फिजिक्स लैब। इंजीनियरिंग फिजिक्स में गए, फिजिक्स लैब में नहीं गए। इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब पे गए हैं सर हम। Activity 1. एक्टिविटी 1 है सर। हाँ, नहीं, उसी को एक्टिविटी 1 इज इंजीनियरिंग फिजिक्स। नो सर, इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब है सर, वहां पर लिखा। पक्का? एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन।
हाय सर मेजरमेंट करके आया है सर। हाँ सर। सर इसमें योर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉल्ड अ प्लगइन दैट इज नॉट येट सपोर्टेड आ रहा है। तो गूगल क्रोम पे कर लो, गूगल क्रोम पे कर लो इसको ज्वाइन। ओके सर। हाँ, एक्टिविटी 1 जो देखा ना आपको, उसकी जस्ट नीचे ही है क्विज ऑन यूनिट्स। एक्टिविटी 1 पे कुछ दिया नहीं सर। जस्ट नीचे उसके क्विज ऑन यूनिट्स 3 लाइन दिख रही है, उस पे डॉट है, रेड ग्रीन रेड रेड। सर क्यूज ऑफ यूनिट के बाद क्या करना है? बस उसको क्लिक करो। सर वो यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है सर। हाँ तो यूजर नेम पासवर्ड डालो ना। सर वो कर ही नहीं रहे, हाँ, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा यूजर नेम। अरे लॉगिन किया होगा ना आपने पहले ही। यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। नहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ज्वाइन क्विज एज स्टूडेंट। सर ओपन दी इन ब्राउजर दिखा रहा सर। सर वो ओपन इन ब्राउजर दिखा रहा है, करो लॉगिन ब्राउजर में करो, कोई दिक्कत नहीं, ब्राउजर में करो। तो क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे लॉगिन करने के लिए। ज्वाइन क्विज एज अ स्टूडेंट, ये करना है आपको। देखो 15 स्टूडेंट ज्वाइन हो गए। सर यूजर नेम में कॉलेज की आईडी डालनी है। लेकिन वो नहीं है उसमें, @ वाला नहीं है। Good, I can see 18 student. इनवैलिड ही बोला सर अभी। वैलिड क्यों बोल रहे हैं? सर वो ज्वाइन करना है ना अभी क्विज, वो आ गया ऑप्शन। आ गया ना, ज्वाइन करो फिर, ज्वाइन क्विज एज स्टूडेंट। ओके सर। सर इनवैलिड ही दिखा रहा है वो। यस सर, इनवैलिड ही दिखा रहा है। इनवैलिड क्यों दिखा रहा है? सर वेट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी सेंड दिखा रहा है। सर यूजर नेम कौन सा हाँ डालना है? बस वही आना चाहिए, वेटिंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, वो आना चाहिए। सर अब वेटिंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन लिखे आया है। हाँ बस वहां तक ही करना है आपको। ओके सर। जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, वेटिंग फॉर स्टूडेंट टू कनेक्ट। हाँ सर। ठीक है, मेरा जो स्क्रीन दिख रहा है आपको। सर नहीं दिख रहा है सर आपका स्क्रीन। सर यूजर नेम में बाटू वाली आईडी डालनी है ना वो। नहीं, बिट बोला जो स्कूल यूर C.2021 या ME.2021 वाला जो है। सर इनवैलिड दिखा रहा है। @ के पहले पासवर्ड चेंज किया गया। @ के बाद का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, @ भी नहीं है। सर ज्वाइन क्विज करना है क्या? हाँ सर पासवर्ड क्या है सर? अरे अब पासवर्ड पूछ रहे हैं, कितने दिन हो गए? B small IT #1234। मूडल में लॉगिन हाँ तो जो चेंज किया है वो डालो फिर। हाँ सर वही डाला है, हो गया लॉगिन। हो गया, जाओ फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब में जाओ। सर यूजर नेम क्या डालना है? यूजर नेम में आपका जो भी है, ME अगर मैकेनिकल है तो ME.2021 वाला जो आईडी है वही डालना है, लेकिन @VIT वर्धा नहीं है। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। I can see 31 student, 33 student have joined. Quite good. सर वेटिंग फॉर द फर्स्ट हो गया सर, हो गया। हाँ वेटिंग फॉर द फर्स्ट, हाँ वो आना चाहिए बस। पासवर्ड रिपीट सर, पासवर्ड रिपीट। पासवर्ड है B small IT। सर वो नहीं है सर, इनवैलिड बोल रहा सर। गूगल में डालना था वो डालना है। तो आपने चेंज किया होगा ना? नहीं सर, चेंज नहीं किया है। सर चेंज किया हुआ डालना है। सर फिर भी इनवैलिड दिखा रहा है। मूडल पे जाके लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए फिर से। गूगल क्रोम से करो।
सर शायद सभी पूरी ईमेल आईडी डाल रहे पूरी ईमेल आईडी नहीं डालना है। हाँ सर इसीलिए सर नहीं हो रहा उनका। हाँ बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं। सर @ के पहले नहीं का डाल डालना रहे थे अभी भी नहीं आ दूसरा आपके ईमेल आईडी में ब्रांच कोड जो है सी या ME उसके बाद डॉट है, 2021 के बाद भी डॉट है, उसके बाद आपका इनिशियल है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज लाइक माई ID देन VM देशमुख, ठीक है, विजय देशमुख नहीं है, फर्स्ट नेम नहीं डालना है आपको, इनिशियल है सिर्फ। आपके नाम का पहला लेटर, फादर्स नेम फर्स्ट लेटर, उसके बाद सरनेम, ठीक है। आई कैन सी 43 स्टूडेंट हैव कनेक्टेड। अभी ये कनेक्ट हो रहा है, मतलब इट्स क्वाइट ओके। ठीक है 50। सर वो वहाँ पर पुरानी वाली एक्टिविटी दिखा रहा है ना सर, पुरानी वाली मेजर मतलब एक्टिविटी 1 की वो पुरानी वाली एक्टिविटी मैंने सबमिशन नहीं की थी। नहीं पुराने एक्टिविटी 1 के नीचे है, एक्टिविटी 1 के जस्ट नीचे टॉपिक 2 दिया है सर, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। सर लेट हो रहा है ना सर, वो हो नहीं रहा ना। हेलो सर हो नहीं रहा है। सर नहीं हो रहा है। सर नहीं हो रहा है। हो रहा है सर। सर नहीं होगा हो होगा, रहा। आप टेंशन मत लो। सर इनवैलिड बता रहा। आप चेक करो कि आपने सही से लिखा है कि नहीं। आपने ID क्या लिखा बताओ। सर me.2021.pb खोल ले। सर आना तो चाहिए। हाँ मेरे दोस्त को मीटिंग से ही बाहर निकाल दिया डायरेक्ट। उसने वो अपना पर्सनल ID यूज किया होगा। नहीं सर, बिट वर्दा का अब तक चाहिए। था, अब सीधा निकाल दिया वो मूडल पे क्विज ओपन किया तो। नहीं ऐसे नहीं होता। सर फिर से ठीक है ज्वाइन ना, करूँ उसको क्या? हाँ बिल्कुल करने को लगा क्या? बिल्कुल ठीक है। देखो जिन लोगों का नहीं हो रहा है ना, वो गूगल मीट पे इसको स्क्रीन देखो, ठीक है। स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आएंगे, बस इतना है कि आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, बट दैट्स ओके, ठीक है। ये ट्रायल ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना कि कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। सर वही दिखा रहा सर, वेट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बस वही वेट फॉर अरे फर्स्ट नहीं क्वेश्चन सर, ही आएगा। अभी नहीं मैं सर, स्टार्ट वही- कर रहा हूँ। अच्छा अभी मैं ऐसा है स्टार्ट क्या? कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. The question is very simple. The answers are very simple. You have to be very careful. ठीक है? And पासवर्ड कौन सा है ये समझून अभी छोड़ दो पासवर्ड वगैरह, अभी छोड़ दो, अभी नहीं आएगा वो, अभी रुक जाओ, ठीक है। जितने हो गए उनको होने दो। फालतू बनवण्या वाटत तुला ह्याच्यात हे टाकून ठेवलेलं आहे ना, त्याच्यात ते एवढं अरे माइक बंद करा रे, माइक बंद नाही। रेकॉर्डिंग चालू आहे ना इकडे। हो सर करतो हाँ सर. ओके, 42 students who are connected, get ready for the first question. Remaining student, just switch off your mic. And the first question on your screen is: an object is moving with speed of 50 meter per second. How much distance it will cover in 10 seconds? Five, 4, 3, 2, 1, finish. 0.5 किलोमीटर। Okay, let me wait for the answer. अब जिन लोगों ने 13 लोगों ने 500 मीटर दिया था आंसर, उनका क्यों गलत है? 0.5 किलोमीटर। Why 0.5 किलोमीटर? बिकॉज 500 मीटर ये स्टैंडर्ड, उसमें 0.5 मतलब स्टैंडर्ड आपने सर अभी बताया था ना वो। ओके, तो ऊपर का क्यों नहीं, फिर बी क्यों नहीं? वो भी तो 0.5 किलोमीटर है। सर वो के कैपिटल है। के कैपिटल है सर उसमें। एग्जैक्टली,
यही मैं आपसे चाहता हूं कि बारीकी से आप देखो। 500 मीटर, द आंसर इज करेक्ट, बट मीटर शुड हैव अ स्पेस इन बिटवीन द नंबर एंड मीटर। यूनिट और नंबर के बीच में स्पेस चाहिए। बी आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि के कैपिटल हो गया। सी आंसर इज द करेक्ट। वाई डी इज नॉट करेक्ट? डी करेक्ट क्यों नहीं है? सर मीटर सर क्योंकि मीटर स्पेलिंग में हाँ, मीटर्स नहीं होना चाहिए। यूनिट का प्लूरल नहीं होता है, इट इज ऑलवेज मीटर। 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। और मीटर का एम स्मॉल चाहिए, कैपिटल नहीं। अगर मान लो मीटर भी लिखते हैं आप तो स्मॉल चाहिए। ओके, एंजॉयिंग? Yes, sir. Okay, so next question is coming to your screen, and the next question is, the derived SI unit of pressure is? प्रेशर का SI यूनिट क्या है? Be careful, you can answer only once. 3, 2, 1, 0. Yes, sir. B. हाँ, पहला क्यों नहीं है? कैपिटल P है सर। और ऐसे ऐसे प्लूरल भी हो गया। सिंगुलर चाहिए था, प्लूरल। हाँ, सिंगुलर चाहिए। सी क्यों नहीं है? कैपिटल P। कैपिटल P हो गया। कैपिटल P। हाँ, और डी क्यों नहीं है? डी हो ही नहीं सकता सर, उसका क्यों डी क्यों नहीं हो सकता? सर वो पास्कल मतलब लिखा नहीं है पूरा। नहीं, शॉर्ट फॉर्म क्या है पास्कल का? पास्कल का PS कैपिटल PA। पी है। हाँ, कैपिटल P है सर। यस सर। हाँ, कैपिटल P और स्मॉल ए। स्मॉल ए। करेक्ट। देखो अभी आपका 70% करेक्ट हो गया, तो एवरेज इज 43% करेक्ट। ठीक है, चलो और 3 क्वेश्चन बाकी है। यू कैन डू वेरी नाइसली। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 is coming to your screen, and the question 3 is, if the weight of the body is 9.8 Newton, then the mass of the body is? मुझे लगता है इसको 20 सेकंड बहुत ज्यादा हो गए, 10 सेकंड ही देना चाहिए था। यस सर। 5 सेकंड भी बहुत है। ओके, ओ बी आंसर। ए आंसर क्यों दिया? 14 में से कोई बताओ। के वो कनेक्ट है वंस को, तो डिस्टेंस चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यूनिट और नंबर के बीच में स्पेस होना चाहिए। स्पेस होना चाहिए। हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया था, तो जल्दबाजी का परिणाम है ये। ठीक है। हाँ सर। और ऑब्वियसली सी नहीं होगा क्योंकि के कैपिटल है, और डी नहीं है क्योंकि के एंड जी बोथ आर कैपिटल है। ओके, कुछ ज्यादा लोगों ने गलत कर दिया। 45% आर करेक्ट। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज कमिंग टू योर स्क्रीन, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, 1 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगाहर्ट्ज? ये आना चाहिए आपको, अभी मैंने सिखाया। ओ, मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया। आवाज नहीं आ रही ठीक है, इसको करेक्ट करो आप, क्योंकि गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 10 to the power 9 हर्ट्ज। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। इधर आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मेरे दोस्त लोग भी बुला रहे साला, बाहर खड़े हो। नमस्कार कमरे। सॉरी सर। दोस्त लोग बुला रहे तो चले जाओ। नहीं सर, वो बार बार फोन कर रहे सर, उसको मना कर रहा हूँ। Okay, the question is 1 gigahertz equal to how many megahertz? ठीक है, now we know 1 gigahertz कितना हर्ट्ज होता है? 10 raised to power 9. 10 to the power 9 हर्ट्ज। ठीक है, सॉरी, हर्ट्ज। now we want megahertz। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको कि 10 to the power 3 यहाँ पे लिख दिया,
10⁶ यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मीनिंग तो वही है। अब ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज व्हाट वी नो इज मेगाहर्ट्ज इक्वल टू कितना होता है? 1 मेगाहर्ट्ज कितना होता है? 10⁶. ये हो गया मेगाहर्ट्ज आपका, सही है। तो दिस इज इक्वल टू 10⁻³ सॉरी मेगाहर्ट्ज, और ये ऑप्शन ही नहीं है। सो 10⁻³ इज 1000। ठीक है, ये देखो इधर दिखाता हूँ मैं। सर वो माइनस नहीं दिखा इसलिए कंफ्यूजन हो गया। माइनस तो है ही नहीं इसमें, माइनस तो है ही सर नहीं। बी ऑप्शन में 10⁻³ सर वो बी ऑप्शन लगा, वो 10⁻³ बी ऑप्शन लगा आपको? हाँ वो माइनस दिखा नहीं, ऐसा लगा 10⁻³ है। हाँ माइनस नहीं दिखा। ओके ओके ओके, तो यही तो आंखें तेज करने का ये एक तरीका है। ठीक है, चलो। The last question, and the last question is coming to your screen, and the last question is 1 micrometer equal to how many kilometers? A B C में माइनस है, D में माइनस नहीं है। 5 4 3 2 1 and the answer is 10⁻⁹ अब बताओ कि ये सही है कि गलत है? सही है। हेलो, हाँ, तो ये आंसर 10⁻⁹ कैसे आया? समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व करें इसको? सॉल्व करें क्या? यस सर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? आ जाओ Yes, स्क्रीन पे, फिर इधर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, विंडो, you can see the screen. So the problem was 1 micrometer equal to how many kilometer? ठीक है, we know 1 micrometer equal to 10 to the power कितना मीटर? 6 plus 6 minus 6 plus 6 plus 6 -6. माइक्रोमीटर का मीटर में कर रहे हैं ना, -6. Now we want to convert this meter into kilometer. ठीक है, ये हमें करना है, but we know 1 kilometer. 1 kilometer is 10 to the power 3 meter. सही है? Yes, सही है कि नहीं है? यस सर, यस थक गए क्या? यस सर। नहीं सर, इतने जल्दी थक गए? Now divide by 10 to the power 3. ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये क्या आएगा फिर? 10 to the power -3 किलोमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सही है? अब ये 1 मीटर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते। तो व्हाट वी गेट इज 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 to the power -6, और मीटर की वैल्यू आ गई आपकी 10 to the power -3 किलोमीटर। आंसर क्या आया? 10 to the power -9। ठीक है, मजा आ गया? यस सर। सर और ऐसे रियल टाइम क्विज लो ना क्विज। सर, मजा आ रहा। और क्विज लो, बोला मजा आ रहा। अभी मुझे प्रिपेयर भी करना पड़ेगा ना, करेंगे और लेंगे हम, बट बिफोर दैट इट विल बी अ टाइम क्विज। आपको 1 आवर में 10 प्रॉब्लम्स, फिर 20 प्रॉब्लम्स, फिर 30 प्रॉब्लम्स ऐसे करने हैं। ठीक है सर, वो लॉगिन ही मेरा सर, वो हाँ सर लॉगिन का प्रॉब्लम आ रहा सर, तभी भी। लॉगिन का हम सॉल्व करेंगे अभी ये लेक्चर होने के बाद लॉगिन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो you have to what you have to do is you have to first, I will share the first unit of this Unicity Physics. Go through it डिटेल में, वो थोड़ा सा समझ लो, और उसके बाद ही क्विज सॉल्व करना है।
उससे पहले नहीं करनी, ठीक है। उसमें कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स दिए होंगे, सॉल्व प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व नहीं, सिर्फ सॉल्व प्रॉब्लम, वही आपको करके देखना है। एक बार सॉल्व प्रॉब्लम आप करके देखो तो आपको सभी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये कन्वर्शन के प्रॉब्लम्स कल तक आपको मैं दे देता हूँ, मंडे तक आपको कंप्लीट करना है। एंड देन मंडे वी विल लर्न अबाउट द इंटरफेरेंस। तो जो हम क्लास में पढ़ रहे थे ना कि इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या है, तो 6-7 कंडीशन जो भी है वो लिख के तैयार रखना है। और आज का जो भी आपने लिखा है उसका फोटो निकाल के पीडीएफ तैयार करो। मैं अभी आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, उस पर आपको वो अपलोड करना है आपके नाम के साथ। दैट विल बी योर अटेंडेंस। सर कितने बजे तक सेंड करना है? अभी 1 घंटे में। ओके एक भी सर। नहीं, आधा घंटे, ठीक है। यस सर। ओके, सी यू देन, हैव अ नाइस टाइम। और जिनका Yes, sir. वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या एक वैक्सीनेशन बाकी है या दोनों बाकी है तो कल आ सकते हैं, ठीक है। सर वो पीडीएफ सेंड करते समय नाम लिख के हाइलाइटर से हाईलाइट करके भेजना है क्या, कि ऐसे ही बिल्कुल भेजा बिल्कुल चलता है? बिल्कुल, हाईलाइट करके ही भेजना है। इसके बाद